I have given some questions for homework. Have you done the homework questions? Are anybody any doubt in any homework questions? First of all, clear it. Then after we will go further. बोलिए. You have done your homework questions from exercise 11.4. Have you done or not? Yes, sir. Yes, sir. Completed. You have completed 11.4. All questions. Yes, sir. रहेगा तो मैं कर लिया हूँ। Okay. सर मैं कर लिया हूँ। Then we will study this chapter algebraic expression today. 12. आप शांत रहिए नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा. बिल्कुल शांत रहिए. चैप्टर नया जो स्टार्ट कर रहे हैं algebraic expression. Listen attentively. This chapter is also important for your further classes. ये क्यों बात कर रहे हो भाई? Why are you talking? Don't talk. आप बात करेंगे तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा, इसलिए बात मत करिए, सुनते रहिए. यदि आपको जरूरी बात करना है फैमिली मेंबर से तो अपने को म्यूट करके बात करो. Okay. Now chapter 12 algebraic expression. This chapter is you will read it in further classes also. आगे क्लास में algebraic expression आप पढ़ोगे, इसके related questions पढ़ोगे. Chapter name is algebraic expression. Algebraic expressions. Listen to me. ये algebraic expression क्या है आप पिछले क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं. algebraic नाम इसको क्यों दिया जाता है? अर्थमेटिक हमने में केवल नंबर पढ़ते हैं. algebraic में नंबर विद वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स letters, alphabet, A to Z, any alphabet may be used with the numbers. Mathematical application is written with this variable, I mean alphabets. Then it is called algebraic expressions. Expressions may be addition, subtraction, multiplication, division with the number and variables. का जो relation है नंबर और वेरिएबल के साथ, यदि मैथमेटिकल एप्लीकेशन आप यूज करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसको कहते हैं आप एक्सप्रेशन. जैसे x + 2 आपने लिख दिया, दैट इज द एक्सप्रेशन. x + y + 3 लिख दिया, दैट इज आल्सो एक्सप्रेशन. A to Z में से कोई भी लेटर और नंबर लिख दिया, जैसे 2 में x से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and x? एनीबॉडी टेल मी? 2x. 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 And what is the division? 2x. When you divide 2 divided x, what will be the value? X divided by 2. X upon me 2. X upon me 2. No. 2 by x. Yes, sir. 2 by x. First will be numerator. Yes, sir. 2. Okay. First number will be 2. And when you subtract, you will subtract 5x. 5x minus 2x. What will be the value? बोलिए. 5x और 2x लिखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. Sir, 3x. 3x. वेरी गुड. ये लाइक टर्म है, इसलिए आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो आपको इसमें मैं पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स बताने जा रहा हूँ, कितने तरह के होते हैं और उसके नाम क्या हैं. यदि वो सिंगल टर्म का है तो उसको आप मोनोमियल कहेंगे. पिछले क्लास में पढ़ा होगा, नहीं इसी क्लास में पढ़ेंगे आप, 7th क्लास है ना, इसी में पढ़ेंगे.
monomial, expression will be called as monomial. Single term वाला यदि होगा monomial होगा. Binomial, don't talk. किसी की आवाज में सुनना नहीं चाहता हूँ. Listen to me only. Monomial, binomial, trinomial, and polynomial. Monomial means the expression having single term. The expression having two term is called binomials. Expression having three terms are called trinomial, and more than three terms are called polynomial. तो मैं जो बना रहा हूँ फ्लो चार्ट, आप मेरे साथ बनाइए. ये नोटबुक पे होना चाहिए. सर अगर डस्टर क्या कर दिए, डस्टर ही नहीं. ओके Okay, students. Now you flow chart. Draw with me and write. Algebraic expression के types मैं बनाने जा रहा हूँ. Types of algebraic expression. You should draw with me. First, monomial. Binomial. And trinomial. Polynomial. Okay. Monomial means mono means one होता है, single. Monomial नहीं दिख रहा है. मोनोमियल में जो टर्म होगा सिंगल टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. एग्जांपल में लिख रहा हूं. फर्स्ट एग्जांपल x 2x. सेकंड एग्जांपल x by 2. एंड मोनोमियल का फर्स्ट एग्जांपल x plus 2. सेकंड एग्जांपल 2x minus 2. Trinomial. Example first. X square plus x plus 1. Second example. X cube minus x minus 2x. 2x minus 1. And polynomial first example. X cube plus x square plus x plus 1. Second example. X power 4 plus 2x square minus x minus 5 and more. हम कब करम तो फील्ड ही जब कर दे सर. बैठो रचना करना. दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा. ये वाला नहीं दिख रहा. This is the examples. These are the example only. ओके सर. सर प्लीज साइड लिख लेने दीजिए. हाँ लिखे. ठीक है सर. ठीक है सर. जो लगी समय के अनुसार भी बंद कर दी. Write down firstly. अरे थोड़े मतलब फील्ड जब हम कंप्यूटर के सामने ले जरा मत कर दे. बाय द वे जो कहीं आगे दे बस तो अफसोस करिए. अफसोस करिए ना. मतलब ये भी बात जैसे बाय द कोनो उत्तर का व्यक्ति आ गए और मान अच्छी बात. Written students. सम्मान. Have you written? अफसोस करिए. No, sir.
इससे मतलब जेई आया देखो ग्रुप बी में आवेला सर क्लियरली नहीं दिख रहा है। यार मैं कहा जाता है यार ठीक बात क्लियर नहीं सर दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है। सर दिख रहा है। बोलिए, मैं बोल दूंगा, फिर से मैं बोल सकता हूँ। जो गलती मत करें। कौन सा नहीं दिख रहा है? ये this one. See, first example is 2x and second example is x by 2. Binomial first example is x plus 2. Trinomial second example is 2x minus 2. Binomial second example and trinomial first example x square plus x. और साल भर में आवेगा ये तरीका मुझे आवाज सुनाई दे रही है, साल भर में क्यों बात कर रहे हो भाई? और कोनो भरोसा किशन नहीं सिंह, है और किशन बहुत सिंह फर्क राजपूत, पड़ता you are talking always. हां जुगाड़ सिस्टम मान लो कब चलता कब बंद हो जाए किशन तो सिंह क्या and भरोसा आशीष यादव. बहुत खासे परिचित में एतु गेल बा परीक्षा Don't जाता talk. Mute yourself. मान लो तो हो जाए मुझे का Trinomial example first is x square plus x plus 1 and trinomial example second is x cube minus 2x minus 1. Polynomial first example x cube plus x square plus x plus 1. Polynomial second example x power 4 plus 2x square plus x minus 5. सर ट्रिनोमियल का सेकंड में आपने क्या लिखा है? x3। x cube क्यूब पढ़ेंगे, x cube minus 2x minus 1. 3 पावर है, 3 को ही क्यूब पढ़ते हैं बेटा, है ना? ये 3 को ही क्यूब बोला जाता है. Okay, written everybody. नो सर। Right Yes, first. sir. यस सर। Okay, now अब सुनिए मेरी बात. Listen to me. इसमें जो टर्म आपने लिखा है, जो भी आपने लिखा है, इसी पर एक्सरसाइज बेस्ड है, इसी पे आधारित है. इसी में आपको मैं बता दूंगा कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ जो पोलिनोमियल का नाम लिखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल, इसमें एक क्यों मोनोमियल कहते हैं? Why you call it monomial, binomial, trinomial and polynomial? ध्यान से सुनिए, ये यहाँ 2x लिखा हुआ है. 2x. Here is written 2x. It means 2 is multiplied 2x. इसका मतलब है 2 से x में मल्टीप्लाई है. और here is written x by 2. It means x is divided by 2. x को 2 से डिवाइड किया गया है, लेकिन टर्म नहीं बढ़ रहा है. ध्यान से देखिए, ये मोनोमियल में ही आ रहा है. ये 2x सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है. एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं. ये x by 2 भी मोनोमियल एक टर्म है. आपको इससे क्या पता चल रहा है? यदि वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उसका टर्म चेंज नहीं होता है. You can see this. We have multiplied 2 से हमने x को मल्टीप्लाई किया, यस तो अभी सर। ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म ही है. 2 से x को डिवाइड किया तो अभी ये सिंगल टर्म ही है. टर्म इज नॉट इंक्रीज, टर्म बढ़ नहीं रहा है. यानी आप किसी कांस्टेंट नंबर से किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो या उसके आगे का साइन भी चेंज कर देते हो तो भी मोनोमियल ही रहेगा, टर्म नहीं बढ़ेगा. अंडरस्टूड? टर्म कब बढ़ेगा? जब आप यस सर। किसी वेरिएबल में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 मैथमेटिकल एप्लीकेशन है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है.
एडिशन में टर्म बढ़ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में टर्म बढ़ जाएगा। देखिए ये दो टर्म वाला है 1 और 2, प्लस और माइनस से टर्म बढ़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म नहीं बढ़ता है। क्लियर, याद कर लीजिए। तो ये बढ़ गया, इसमें ये बाइनॉमियल हो गया। सेम नंबर से यदि आपने ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टर्म बढ़ गया, और लेकिन मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो टर्म नहीं बढ़ा, ये मोनोमियल ही रहा, लेकिन यहाँ हो गया बाइनॉमियल। ट्राइनॉमियल में मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, 2 से अधिक टर्म हो गया। देखिए ध्यान से 1, 2 and 3 टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसको ट्राइनॉमियल कह रहे हो। यहाँ भी 1, 2, 3 टर्म्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल। हियर मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से अधिक टर्म है, इसको आप पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल तो वैसे आप सबको एक साथ पॉलिनॉमियल के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं, लेकिन कॉमन नाम पॉलिनॉमियल है। लेकिन यदि 3 से अधिक टर्म है तो उसको पॉलिनॉमियल नाम देंगे। 2 टर्म है तो बाइनॉमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल। क्लियर? अब इसके साथ एक और चीज समझिए जो क्वेश्चन में पूछा है, आप ये ध्यान से सर एक बार पॉलिनोमियल बता दीजिए सर। सर एक बार पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स, the ओके expression सर, ओके having सर, more than 3 ओके terms are called polynomial. And listen, one more thing, जो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, इसी पर आपको समझाया जा सकता है, इसलिए मैं इस पे समझा रहा हूँ। आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज आपको आने लगेगा। ध्यान से सुनिए आगे क्या इसमें पूछा है क्वेश्चन में। उसने पूछेगा आपसे कि कोफिशिएंट क्या है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। टर्म को आप अपनी आवाज सही जा रही है, अपना माइक सही करिए। सुनिए, यदि वो आपका उधर का नेटवर्क में अच्छे से नहीं चल रहा है। इतनी आवाज तुम्हारी साफ सुनाई दे रही है, कह रहे हो कि धीरे आ रही है। हाँ सुनो यहाँ ध्यान से, ये 2x लिखा है, 2x मीन्स 2 into x, 2 into x मीन्स 2 से x में मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखिए, तो यदि x का इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ना, हिंदी में उसको गुणांक कहते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, तो ये x ने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज द कोफिशिएंट। तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। सर तो 2 इसका कोफिशिएंट हो गया, इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट हो गया। सर म्यूट एवरीवन, म्यूट कर दीजिए सबको। सर हाँ तो इधर वाला क्या लिखे हैं सर? हाँ, सर इधर वाला क्या लिखा है, जो इधर लिखा है इस साइड में? तो बात करते हो ना, बहुत डिस्टर्ब होता है इसमें। कौन कौन बात करने वाले सर, हैं? तो बात कर- आलम अंसारी। क्लास को ही डिस्टर्ब करते हैं ये। सर म्यूट एवरीवन। क्यों बात करते हो? हाँ आप लोग हैं डिस्टर्ब कर देते हैं सभी। Why are you talking always? बोलिए। सर हाँ, तो ये इधर वाला क्या लिखा है? कहाँ बोलो? मोनोमियल, ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल में से कहाँ पूछ रहे हो? ये सब पॉलिनोमियल मतलब उसी में बताइए। पॉलिनॉमियल में मोर देन 3 टर्म्स हैं, ओह। मोर देन 3 टर्म्स। और सर ट्राइनोमियल? 3 टर्म्स, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म होगा।
इनर रही हमारा अंदर हाई ले लिया कौन पढ़ने का छठ ओके सेम। अब आप कोएफिशिएंट समझ रहे थे। कोएफिशिएंट क्या है? किसी वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोएफिशिएंट है। जैसे इस एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 2 सर 2 नहीं सर 2 1/2 है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो x/2 आया है। इसमें कोएफिशिएंट क्या है x का? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x? इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप 1 बताएंगे। +2 है x+2 में x का कोएफिशिएंट 1 है। 2x में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 2। टू किस नंबर से मल्टीप्लाई है वही एक कोएफिशिएंट होता है। यहाँ बताओ। यस सर 2 यहाँ बताइए x² में x² का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 1 1 एंड इस x का क्या है? x का सर 1 एंड x³ का क्या है? सर इसमें भी 1 है यहाँ x का क्या है? सर 2 बोलिए। 2 है सर x -2x है। -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 होगा। -2 कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पर बताइए इस x का 2x² यहाँ रिटन है। 2x² में x² का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? 2। ओके वेरी गुड। द कोएफिशिएंट भी आपसे पूछा गया है ना? कोएफिशिएंट भी पूछा गया है सर तो आप बता देंगे यहाँ से कि कोएफिशिएंट कैसे बताना है। अगर जाली ना लगी तो आज नाउ द फर्दर क्वेश्चंस। यस सर सी अब आप ट्राई दीज में चलिए। ओपन जाली ना लगी योर बुक पेज नंबर दे दे 230। कौन बात कर कहीं रहा है? हटावा बैठे कौन पर्सनल बात करते हो? सर कितना पेज नंबर क्यों बात कर रहे हो? सर कौन सा पेज नंबर हो जे बैठी का दोनों तो बराबर है पेज म्यूट करके बात करो। डोंट टॉक विदाउट म्यूट। म्यूट योरसेल्फ। पेज 230। ट्राई दिस क्वेश्चन। गोइंग टू रब इट। बताइए जाने जा रहा हूँ। Try this. यस पर निकाल लिया Page 230. Question number 1. Same. The question is describe how the following expression are obtained. यहाँ लिखा है 7xy plus 5 x² y। ये एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है? 7 टाइम्स लिखा है 7 times xy plus y. How this expression is obtained? Your answer will be 7 times. सर 12xy 7 times xy आउट वाला लिंक आया plus 5. सर क्या बताना है इसमें 12xy यहाँ आप लिखेंगे 5 is added to 5 is added। साफ लिखते हैं, रुक जाइए। 5 is added to 7 times xy। 7 times xy। ये एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है? ये 7 times xy में 5 को जोड़ने से मिला है तो ये लिखने को कह रहा है। ओके आप बताइए यस सर ये x² y लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? x² y
क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई वाई, ओके। और 4x स्क्वायर माइनस Yes, sir. 4x स्क्वायर माइनस 5x लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 5x। इसमें आप क्या लिखोगे? ये 4 टाइम्स x स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड बाई 5 टाइम्स x। ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स x स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड बाई 5 टाइम्स x। लिख देते हैं। 4 times x square is subtracted by 5 times x, 5 times x। ये जो थोड़ा सा बड़ा था उसको मैं लिख दिया। अब आगे सर सेकंड का क्या होगा? सेकंड का लिखोगे x स्क्वायर इज X मल्टीप्लाइड बाई square y। multiply by y. Yes, sir. अब ट्राई दी, नेक्स्ट पेज में आइए। 231 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म्ड। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कह रहा है। ट्री डायग्राम आप थोड़ा इससे समझिए, यहाँ ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। Yes. मिटा दें। Yes, मिटा सकते हैं आप। पेज 231। Yes, sir. इसमें ट्राई दीज है 8y प्लस 3x स्क्वायर का ट्री डायग्राम। यहाँ लिख रहा है कि फॉर्म ट्री डायग्राम, ड्रॉ ट्री डायग्राम। क्वेश्चन है ड्रॉ ट्री डायग्राम। ट्री एक पेड़ की तरह से डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम ऑफ, इसमें किसका कह रहा है, इसमें मैं लिख रहा हूं। ये है 8y प्लस 3x स्क्वायर, 8y प्लस 3x स्क्वायर कॉमा 7mn माइनस 4, 7mn माइनस 4 कॉमा 2x स्क्वायर y। इसका ट्री डायग्राम बनाने हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज में है इस तरह का। इसको ट्री डायग्राम अब जब बनाएंगे तो इसको लिखेंगे आप 8y प्लस 3x स्क्वायर लिखने के बाद यहां से आप दो इसमें टर्म दिख रहा है। देखो ध्यान से, प्लस या माइनस एक ही प्लस है, एक प्लस के साथ 2 टर्म दिख रहा है। तो ये 2 प्लस जो है 2 इस टर्म को इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 टर्म बना दे रहा है। माइनस भी लिखा रहेगा तो टर्म बढ़ेगा। यहाँ पर क्या लिखें, 8y और हियर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हुआ। अब यहाँ बताइए, ये तो टर्म बता दिया, करेंगे ड्रा ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें केवल ट्री डायग्राम कह रहा है टर्म्स आर फॉर्म्ड। जो टर्म्स है उसको आपने दिखा दिया है, तो ये तो वेरी इजी, आप भी दिखा सकते हो। बोलिए 7mn Yes, sir. माइनस 4 को कितने टर्म में आप दिखाओगे? कितने टर्म है इसमें? ये 2 term. डॉट डॉट करके आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये डॉट डॉट करके ऐसे कर सकते हैं। ये पहला 7mn और ये -4। तो इस तरह आप ट्री डायग्राम इसका बना लेंगे। इसका तो नहीं बताइए तो क्या होगा भाई? तीसरे का 2x स्क्वायर और y। वो इसमें टर्म के बाद यदि आपसे कोफिशिएंट पूछता है या फैक्टर पूछता है तो उसमें आगे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो फैक्टर का नाम नहीं लिया है, आगे मिलेगा, केवल टर्म कहा है, तो ये सिंगल टर्म ही होगा। ये ट्री डायग्राम में जो सिंगल टर्म है
वो आगे नहीं टूटेगा, आप उतना ही रहने देंगे, 2x² y ही रह जाएगा। देयर इज नो ये 2x² y ओनली, इसका कोई ब्रांच नहीं है, इसका ब्रांच इसलिए नहीं है इस ट्री का क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। ओके, 10 मिनट्स रनिंग टाइम इज गोइंग ऑन। हाँ सुनिए, अब एक और समझिए, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टर्म्स को पहचानना है। नेक्स्ट ट्राई दिस है, तो इसको मैं ओरली बोल दूं, आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। स्टूडेंट्स लिसन टू मी एंड सी इन योर बुक द नेक्स्ट ट्राई इज। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन दे रहा है, लिसन। ट्राई दिस में जो मैंने पहला किया है अभी, उसके नीचे क्वेश्चन है, राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 सेकंड नंबर। हाँ, सेकंड नंबर में दे रहा है कि 4 टर्म वाले आप 3 एक्सप्रेशन लिखिए। तो मैंने तो लिखा था ना एग्जांपल में, जो पॉलिनोमियल जो लिखा था ना बेटा, उसी में से आपको 3 टर्म लिख देना सर। है। पॉलिनोमियल Yes, sir. मैं लिखा था ना, 3 टर्म पॉलिनोमियल में लिखा है कि Yes, 3 sir. एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स। 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल में था, तो 4 Yes, टर्म sir. वाला आपको लिखने के लिए 3 एक्सप्रेशन कह रहे अपने से लिख सकते हो। तो 2 तो हाँ। मैं ही Yes, sir, लिख सकते लिख हैं। दिया था, आप एक और लिख दीजिएगा, ठीक है, Yes, sir, Yes, लिख sir. लेंगे। वहां से हो जाएगा। और यहाँ उसके नीचे ट्राई दिस दे रहा है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कोएफिशिएंट बताना है, ये आपको मैं पहले ही बताया हूँ, इसको मैं करने जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं पूछूंगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर इसी के नीचे है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्राई दिस। आइडेंटिफाई the coefficients of the terms. Coefficients of the terms of following terms of the following expressions. Expressions, okay. एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहला, यस सर। 4x - 3y। आपको इसमें कोएफिशिएंट बताना है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ इसके नीचे आप लिखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट शॉर्ट में ऑफ x कितना है, और कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, टेल मी। सर 4। 4, वेरी गुड। और y का क्या है, सर 3। -3 है। तो इसी तरह से यस सर। Yes, sir. अगला बताइए, a + b + 5, what is the coefficient of a? You will write here like सर this. 1। Sir, 1. Sir, 1. Coefficient of 1. a, now coefficient of b। Sir, 1. केवल वेरिएबल का B। कोएफिशिएंट लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. वेरिएबल x के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई है, 1, Sir, और b के साथ बी के साथ 1. सर 1। 1 है, कोई नंबर नहीं तो 1 से है। तो आगे छोड़ दे, यस सर। छोड़ दे ना। Yes, sir. यस सर। Sir, try this करेंगे ना? यस सर। हाँ करेंगे, Sir, try this करेंगे ना? हाँ करना है भाई, ट्राई दिस का जो मैं Okay, छोड़ रहा sir. हूँ, उसको करना है। Okay, sir. Okay, sir. 2y + 5 में y का कोएफिशिएंट लिखिएगा 2, और 2xy में 2। यस सर। xy का कोएफिशिएंट 2 2। हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, यस सर। ये पेज नंबर 233, पेज 233 खोलें, इसमें भी ट्राई दिया हुआ है।
कायदीज आप अच्छे समझ जाएंगे, एक्सरसाइज मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लेंगे खुद। देखिए पेज Yes. है, पेज 233। यस सर वेरी इसमें दिया है ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर फॉर्म द फॉलोइंग। ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। क्वेश्चन है यस सर लाइक टर्म में बनाने लिखने द हैं। लाइक टर्म्स टुगेदर फॉर्म द फॉलोइंग। टुगेदर फॉर्म द फॉलोइंग। ठीक है, ये फॉलोइंग जो दे रहा है इसमें आपको ग्रुप बनाना है लाइक का। देखिए दे रहा है कि 12x, 12 है, -25x, -25y, comma 1, comma x, comma 12y 12y, comma y 12y, comma y। एक चीज आप बहुत जरूरी है समझना, लाइक और अनलाइक। यदि लाइक अनलाइक आप नहीं समझेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म को ही यस सर जोड़ सकते हैं। अनलाइक को केवल साइन के साथ लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको x में y जोड़ना है तो केवल लिखेंगे x + y। यदि x में x जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, x + x = 2x ऐड कर सकते हैं। यदि x में यस से सर x माइनस करना है तो x - x 0 लिख सकते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। लाइक में से लाइक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अनलाइक में से लाइक में से लाइक में अनलाइक यस में सर। लाइक नहीं हो सकता, इसलिए लाइक में ही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और लाइक टर्म पहचान में आना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये x है, x लिखा है और यहाँ 2x लिखा है, यस सर क्या ये दोनों लाइक है? बोलिए सर लाइक है कि नहीं? क्या सर 12x और 12 अलग है। नहीं, मैं x 2x एग्जांपल अपना एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप बताइए x and 2x आर लाइक टर्म आर नॉट? यस सर लाइक है सर सर लाइक है, सर लाइक इसमें तो लाइक है क्योंकि इसमें सर x है। ठीक है, सही है। यदि -x और 2x लिखा जाए तो भी लाइक है। यस सर लाइक है ठीक है, और यहाँ यदि मैं लिखता हूँ 2/3x और 2x, क्या ये भी लाइक है? यस सर बिल्कुल लाइक है। सुनिए, तो आपने क्या समझा, लाइक टर्म कब तक लाइक रहता है? लिसन टू मी। सर जब तक वो वेरिएबल सेम इक्वल हो। हाँ, वेरिएबल चेंज ना हो, वेरिएबल जब सेम वेरिएबल चेंज सेम रहेगा और यस उसके सर आगे कोई भी नंबर या कोई भी साइन डालेंगे तो लाइक ही रहेगा, अनलाइक नहीं होगा। यस लेकिन सर वेरिएबल x के यस जगह सर y हो जाएगा तो वो अनलाइक हो जाएगा। एक और चीज, पावर चेंज होता है, सेम वेरिएबल पर पावर चेंज हो जाए तो आप बताइए, ये x² है और 2/3x और x² लाइक है कि नहीं है? अनलाइक है सर अनलाइक है अनलाइक है सर जी। यदि एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाती है, पावर यदि बदल गया, सेम वेरिएबल बेशक सेम वेरिएबल हो लेकिन यदि वो उसका पावर अलग अलग हो तो अनलाइक हो जाता है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। यस सर तो ये अनलाइक पावर, यदि डिग्री चेंज हो गई यानी उसके पावर्स चेंज हो गए, किसी एक का भी चेंज हो गया तो अनलाइक हो जाएगा, वो लाइक नहीं रहेगा। ओके, तो अब आप यस सर होंगे राइट इसमें दिया है लाइक टर्म आप बताइए, इसमें लाइक टर्म के ग्रुप बताइए। लाइक टर्म में यस कौन सर कौन ग्रुप? 12x - 25x पहले और रुकिए, सर ग्रुप x नंबर